It's yet another shocking case where once again people have taken law into their hands and driven their SUV vehicles, their diesel guzzlers into eco-fragile zones. It's a trend that we have found in Kashmir Valley of late, a disturbing trend where youth, mostly YouTubers who make content, they were seen going into the forest areas. Previously, one such incident was reported to the authorities. The video again went viral, triggering angry reactions from the netizen. Action was initiated, but in fact, another shocking case where PhysicsWallah, which is an online educational platform and imparts education to, in fact, for competitive exams and otherwise, and is very famous in the Kashmir Valley. They made an ad where they took SUV cars, Scorpios. Most probably what they were trying to depict was their professors, their people going into the forest area and in fact damaging the fragile ecology, the green turfs. Now again this video went viral and now the authorities have taken action. Under the 24D Forest Act, action has been initiated, and to add to that, two more sections of the BNS have been slapped. That's 324, 329, that deals with damaging public property and also illegal trespassing. However, what's even more surprising for people in this case is the fact that this is an institution which deals with education, imparting education, and the kind of precedent and the kind of example they're setting is absolutely shocking, because students look up to them, Gen Next youth look up to them. They should inspire in the right way rather than making these videos, which for many seem to be a scene from a gangster movie probably, where people were just going in with their Scorpios in black suits into the forest area. So a shocking incident, but police and the forest officials have taken action, and the hope is that it will act as a right deterrent, and in the future no one would really take law into their hands and venture into the eco-fragile zones without caring about the sensitivity of the place. देखिए, अगर आप देखेंगे जो हमारे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स हैं उनको रिजेनरेट होने में तकरीबन सदियां लग जाती हैं। तो इसी असना में अगर आप देखेंगे तो जब हम ऑफ रोड ट्रैकिंग करते हैं तो हमें एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो मिल जाती है, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। मगर इस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस की आड़ में अगर आप देखेंगे तो उसमें हम कितने जो हमारी जो प्लांट जो डाइवर्सिटी है वो बर्बाद होती है उस ऑफ रोड ट्रैकिंग से, ऑफ रोड ड्राइविंग से। तो जो गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं तो उससे जो हमारे यहाँ जो छोटा मोटा जो हर्ब्स होते हैं तो वो वहाँ पे कुचले जाते हैं, तो जिसकी वजह से एक फूड चेन वो डिस्कनेक्ट होती है। क्योंकि अगर आप देखें जो ग्रास लैंड्स है तो जो ग्रासेस होते हैं दीज आर द प्रोड्यूसर्स। तो जब फूड चेन में प्रोड्यूसर ही को हम बर्बाद कर रहे हैं, उसको हम घसीटते हैं टायर्स के नीचे, तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इकोसिस्टम एक इम्बैलेंस होती है इकोसिस्टम में। विद द रिजल्ट तो उसके बहुत सारे लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जब आपका जब ग्रास कवर हट जाता है तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो आपकी जो वो मिट्टी होती है दे गेट्स एक्सपोज्ड टू द इरोजन। तो अगर थोड़ी सी बारिश होगी तो विद द रिजल्ट तो वहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, बस उसके साथ वहाँ पे सॉइल इरोजन हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो बाकी जो हमारे जो वहाँ पे जो ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स है वो जब टायर्स की वजह से वो कंपैक्ट हो जाते हैं, जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो मर जाते हैं, वो कुचले जाते हैं टायरों के नीचे। तो इस ज़माने में मैं कहूँगा कि जो आप छोटी सी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस की वजह से इतना सारा आप बर्बाद कर रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा एक्ट उन्होंने लगाया है जो FIR लॉन्च हुआ, एक खुशाइंद बात है। तो उसमें और उससे पहले अगर आपने देखा ददपथरी में एक ऐसा वाक़ा हुआ था, मुझे नहीं लगता कि शायद उस टाइम गवर्नमेंट ने इतना सीरियस उसको नहीं लिया, तो आज उन्होंने एक सीरियस स्टेप उठाया है। तो एक तरफ से हम ग्रासलैंड पास्चर्स को रिजेनरेट करने की कोशिश करते हैं, रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से ये एक खुशाइद कदम है कि उन लोगों पे FIR लग चुका है। ये एक प्राइवेट इदारा है, क्या आपको लगता है इसे गलत मैसेज जाती है, बच्चों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? ये जेन्युइन है कि अगर आप देखेंगे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं या वहाँ के जो बच्चे हैं जब इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होंगे तो बाकी लोग से हम क्या कह सकते हैं कि जो बाकी लोग तो उससे वो इंटीमेट हो जाएंगे, तो और बाकी लोग भी इसी तरीके से बाकी ऑफ रोड ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से पूरे जो हमारे जो चाहे नॉर्थ हो या साउथ कश्मीर के जो फॉरेस्ट हैं तो उनमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। गवर्नमेंट से क्या भी हो रही है, कैसे इन तत्वों
के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहे कि जो उन्हें एक खुशायद काम किया है कि उन्हें एफआईआर उन पे ऑलरेडी लॉन्च किया है, तो इसकी वजह से एक अच्छी मैसेज जाएगी थ्रू आउट द वैली कि जितने भी लोग आज के बाद ये जो जो एक्सपेडिशंस के लिए जाते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, तो वो आइंदा ऐसी कोशिश ना करें। तो उनको एक ऐसी अच्छी मैसेज गई कि आगे अब उनके लिए अब ये वो नहीं कर सकते ऐसी एक्टिविटीज। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम एजुकेशनिस्ट है, फिजिक्स वाला, वो किस तरीके से लगते हैं कि उनके पास खुद, मुझे नहीं लगता उनके पास खुद एक मॉरल एजुकेशन होगी, क्योंकि वो इस तरह से इवेंट कराते हैं यहाँ पे जगह जगह पे, जहाँ पे वो जाते हैं गंद मचाते हैं। मुझे लगता है कि उनका जो ये फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट है, उनको एक प्रोडक्शन एक्शन हाउस खोलना चाहिए। जिस तरह से वो यहाँ पे कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ उन्होंने ऑफ रोड शो किया था यहाँ पे, उसी रिगार्डिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक बच्चा होता है, कमसिन होता है, इसको तराशना चाहिए। ये एक खुरदरा पत्थर होता है, अगर इसको अच्छी तरह से तराशा जाए, अच्छी तरह से इसको शेप दी जाए, तब जाके अपनी जगह बना सकता है कहीं पे। इसको आगे जाके ये एक कौम का सरमाया है, आगे जाके इसको मतलब कौम की बागडोर संभालनी है। क्या लगता है इस तरह से अगर आप ये रोड शो करोगे, ये मतलब बॉलीवुड की तरह ये शो करोगे, तो क्या लगता है आप एक बच्चे को मॉरल एजुकेशन दे सकते हो? आप जितने भी आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, हायर लेवल के ऑफिसर्स निकले हैं ना अब इंडिया में, मुझे नहीं लगता मॉरल एजुकेशन के बगैर वो उन्होंने टॉप लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। इस तरह से ये मतलब उनका ये हमारा सरमाया भी जाया, उनकी मेहनत भी जाया और हमारा कौम भी जाया है। जो एक्शन हुआ, क्या आपको लगता है इससे टफ एक्शन होना चाहिए इन पे? नहीं, अगर मेरे हाथ में हुकूमत होगी, मैं तो उनका इंस्टीट्यूट ही बंद करवा दूंगा, मैं तो उनको जेल भेज दूंगा। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल इनके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ली जाए, और इन्हीं की मतलब तरबियत में अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट वो कॉपी करेंगे, हो सकता है वो भी आगे जाके ऐसे करेंगे। फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, हमारे यूथ का क्या होगा, हमारा जो यूथ है सरमाया, इनका क्या होगा? ये तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। जो टीचर्स है उनको कौम का सरमाया कहा जाता है, बट जब ये ऐसे एक्ट करेंगे तो इम्प्रेशन कैसा जाएगा बच्चों पे? बिल्कुल ही आप देख सकते हो, मतलब जगह जगह पे, हर किसी स्कूल में, हर किसी कॉलेज में इस तरह के मतलब हादसात हो रहे हैं कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान जो रिलेशन होनी चाहिए ना, वो रिलेशन खत्म है। जैसे कि ये लोग तो रिएक्ट ऐसे करते हैं जैसे मियाँ बीवी है। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक रिलेशन, अच्छी रिलेशन होनी चाहिए। उनके दरमियान जब तक ये खौफ नहीं होगा, ये मेरा टीचर है, मुझे इसकी इज्जत करनी है, मुझे एक लिमिट क्रॉस नहीं करना है। इन्होंने एक मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। इस तरह से एजुकेशन चल सकती है क्या? ये तो बिल्कुल खत्म है, एजुकेशन सिस्टम हमारा खत्म ही है। और हमें एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ऑल ओवर इंडिया को, क्योंकि अभी भी लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हमारी बहुत कम है। जो हमारा एनवायरनमेंट था, मतलब लार्ज ग्रीन फॉरेस्ट, जब ऐसी एक्टिविटीज हो जाए तो एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट? कश्मीर में ऑलरेडी बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन हो गई है, बहुत सारा जो हमारा ये जो मतलब जंगलात है, हमारा सरमाया खत्म हो गया। अगर इसी तरह से ये लोग रोड शो करेंगे, इसी तरह से विदाउट परमिशन जंगल में जाएंगे, वहां गाड़ी चलाएंगे जहां परमिशन नहीं होगी, तो आपको क्या लगता है अगले 10 साल में खत्म ही हो जाएगा सारा जंगल? लोग आज ये गए, कल लोकल लोग जाएंगे, परसों और कोई जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा? इसके रिगार्डिंग इन चीज़ों के रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे उन्होंने कल ऑफ रोडिंग की है, जो नेचर है उसका नुकसान किया है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नेचर को कितना बचाएं, इस ग्रीनरी को कितना बचाएं। तो ऐसी एक इंस्टीट्यूट आता है या ऐसा कोई कोचिंग सेंटर आता है जो ऐसे उसको तहस नहस कर देता है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और मेरी आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से, आला इंतज़ाम से गुजारिश रहेगी कि इनके लिए इनके तरफ से इनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी हरकत दोबारा और कोई ना करे। देखिए, ये जो फिजिक्स वाला पिछली बार भी एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसी हरकतें जो अनंतनाग में पिछली बार प्रोग्राम था उसमें भी सेम यही हुआ, क्योंकि हम दीन वाले हैं, मज़हब वाले अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे दीन में, हमारे मज़हब में ये इजाज़त नहीं देता है वो हरकतें। और मेरी गुजारिश है कि पेरेंट्स से भी कि आप ऐसे कोचिंग सेंटर्स में अपने स्टूडेंट्स को डाल रहे हैं, आप ऐसे कोचिंग, ऐसी तालीम दे रहे हैं जो अपने दीन से दूर कर रहे हैं,
तो ऐसी तालीम को लानत में डालता हूँ कि ऐसी तालीम ही किस लिए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जो हरकतें वो पिछली बार हुई, आज ये ऐसी हुई, क्योंकि हमारा जो कश्मीर है ये ग्रीनरी से पहचाना जाता है, नेचर से पहचाना जाता है, और वो ऐसे हरकतें करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे और इसको तहस नहस कर देंगे। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसके क्या कहते हैं, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए यही तो मैंने कहा, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल लोग हैं, देखिए वो जंगलों में जाते हैं और वहाँ पे कैसे इस जंगलात की हिफाजत करते हैं, कैसे इस ग्रीनरी की हिफाजत करते हैं। तो जब इस चीज की हिफाजत करके, और वो उनके पास माल मवेशी भी होते हैं और वो फिर भी उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आप देखिएगा कि यहाँ पे अपने आप को एंजॉय करने के लिए आते हैं और एंजॉय करते करते इस पूरे कश्मीर की इस ग्रीनरी को तहस नहस कर देते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी, आला इंतजाम से, सरकार से गुजारिश रहेगी कि इनके लिए इनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां, आने वाले जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, वो इस चीज का ख्याल रखेंगे। With camera person Umesar Gulmeet Farid, Srinagar for India Today.